हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेशियो एनालिसिस। आज हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे आधारित है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Ratio is the relationship between two figures expressed arithmetically. For example, the ratio between 5 and 10 is 0.5, or you can say it's 50% or 1 is to 2. रेशियो एक तरह का रिलेशनशिप है दो नंबर्स के बीच में जो मैथमेटिकली दर्शाया जाता है, जैसे 5 और 10 का रेशियो है 0.5 या 50% कह सकते हैं, या फिर 1 is to 2. Accounting ratios are relationship between two accounting figures which are connected with each other and have some cause and effect relationship. Accounting ratios की परिभाषा इस प्रकार है। ये दो accounting figures या संख्याओं का relationship है जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें एक का असर दूसरे पे पड़ सकता है। To look for overall financial position of any business and to ascertain its profitability, liquidity or solvency or efficiency, a comparative study of relationship between the various items of financial statement is necessary in the form of accounting ratios. किसी बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस जांचने के लिए और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी या एफिशिएंसी परखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी आइटम्स के बीच का रिलेशनशिप देखना पड़ता है, जो कि अकाउंटिंग रेशियोज के रूप में दिखाई देते हैं। Various users of accounting ratios are management, shareholders, investors, creditors, government, financial analysts, etc. अकाउंटिंग रेशियो की जरूरत इन लोगों को पड़ती है: मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट इत्यादि। Based on purpose of its calculation, the functional classification of ratios are as follows. काउंटिंग रेशियो की फंक्शनल क्लासिफिकेशन की जाती है उनकी कैलकुलेशन के लिए, जो कि इस प्रकार है: 1. Profitability ratios, 2. Turnover ratio or activity ratios, 3. Financial ratio or solvency ratios, and 4. Market test ratios. Profitability ratios are calculated to examine overall efficiency of the business and are calculated either on the basis of sales or investments. Different types of profitability ratios are described as follows. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने जाते हैं बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी देखने के लिए, और ये रेशियो या तो सेल्स के या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर निकाले जाते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इस तरह हैं: फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस मार्जिन रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड थ्रू following equation: gross profit divided by net sale or turnover and multiplied by 100. Gross profit ratio expresses the relationship of gross profit to net sales or turnover. Gross profit is excess of the proceeds of goods sold and services rendered during a period over their costs before taking into account administration, selling and distribution, and financing charges. This ratio should be sufficiently higher to cover subsequently remaining costs and reasonable returns to the owners. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दर्शाती है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल या फिर टर्नओवर के रिलेशन को। ये निकाली जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है नेट सेल्स, जिसको टर्नओवर भी कहते हैं, और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है नेट सेल या टर्नओवर में से बिके हुए माल की कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को घटाने के बाद। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट का कॉस्ट शामिल नहीं होता है। ये रेशो इतनी ज़्यादा तो होनी ही चाहिए कि बाकी की कॉस्ट जो आने वाली हैं वो भी निकल जाएं और मालिकों का फ़ायदा भी बच जाए। Another profitability ratio is net profit ratio, which is operating profit into 100 and divided by net sales. Here, operating profit equals to income before interest and taxation
which is excluding of non-business income. Net sales is the gross sales minus sales return. Net profit or operating profit arrives from gross profit after deduction of administration, selling and distribution expenses and other non-operating incomes. नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करके नेट सेल के साथ, फिर उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। यहाँ नेट सेल्स टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है इनकम जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स नहीं घटाए जाते, और इसमें इनकम्स जो कि मुख्य बिजनेस से ना मिली हो वो भी शामिल नहीं होती। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, which is operating profit into 100 divided by capital employed. Capital employed is equal to share capital plus reserves and surplus plus long-term loans minus non-operating assets minus fictitious assets. Return on investment shows how much business is earning on its investment. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि बिजनेस कितनी कमाई कर रहा है उसमें की गई इन्वेस्टमेंट पे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दर्शाया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके। कैपिटल एम्प्लॉयड इन सब को जोड़ कर बनता है जो कि है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स, और इनमें से घटाया जाता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स और माइनस किया जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। The next ratio is return on shareholders fund, which is net profit after interest and taxes multiplied by 100 divided by shareholders funds. Shareholders funds is also known as net worth. This is also called return on net worth. This is the return on the shareholders viewpoint so as to know how much shareholders earning on their funds. रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स फंड्स को रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी कहा जाता है। इसे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट अर्न्ड एंड टैक्सेस को शेयरहोल्डर्स फंड्स के साथ डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड से पता चलता है कि शेयर होल्डर्स के फंड से कितनी कमाई हुई है। The next ratio is return on assets, which is net profit after tax into 100 divided by total assets. Return on assets is measure of assets efficiency in earning income. Return on assets बिजनेस एसेट्स की इनकम पैदा करने की एफिशिएंसी दर्शाता है। इसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को टोटल एसेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद निकाला जाता है। In the next video of part 2 of this series, we will discuss about financial ratios comprising liquidity and solvency ratio. अगले वीडियो जो कि इस सीरीज का पार्ट 2 है में हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज की जिसमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर व्यूइंग मोर सच वीडियोस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।